Hello, YouTube family. Welcome to our channel Bailung Screendale. चलो आज बात करते हैं about terrariums और हम लोग ये वाला terrarium बनाने स्टार्ट करेंगे. So basically to make this terrarium मैंने एक ग्लास का जार लिया है या you can say aquarium type का है ये एक. This is a smaller version of an aquarium with a lid on top. Then I have a Buddha statue. Then I took a bark of a dry tree that I found it outside in the jungle. Then some shrubs and ferns, some moss that I collected from the surrounding, maybe from walls and all, a mash. Then I will be using some soil. You know my soil mixture, what I use. So if you need that, then do let me know. And for nutrients, I'm using Thermocort as always. So thank you everyone for staying connected. अभी हम one by one ये process start करेंगे and let's see and stay tuned with me throughout the process ताकि हम लोग सीख सके so that we can learn how we can make a terrarium DIY terrarium at home itself. So initially मैंने इसके अंदर में छोटा वाला Leica ball डाला. I put some Leica balls, the smaller ones inside for the base. ओके बेस को मुझे एक साइड में थोड़ा वो एलिवेटेड करना है. आई वांट टू कीप सम एलिवेशन टुवर्ड्स द बैकग्राउंड. सो आई जस्ट पुट इट इन दिस वे एंड देन आई विल पुट ए मैश. ओके सो दिस मैश विल हेल्प द सब सॉइल जो ऊपर का सॉइल है उसको नीचे की जो लेयर बनाया है हम लोगों ने लाइका बॉल उसके साथ मिक्सचर ना हो. So that when we water, जब भी हम पानी देते हैं, so that the extra water या moisture, the extra water or the moisture that goes in pass through the subsoil and it gets stored up in the Leica ball. So this will help create a proper balance of water and it will not harm the plant. Then towards the background or backside, I will put this dry bark that I collected from the garden itself, or you can collect from anywhere. See, it's your creativity. आप कैसे करना चाहते हो. This was in my head, so I just tried to put it in the form of this terrarium. And I'm sure, मैं एकदम sure हूँ कि आप इससे 100 गुना ज़्यादा अच्छा बना सकोगे. You will make 100 times better than this terrarium. I'm 100% sure about that. So after that we put our soil. फिर इसको थोड़ा टैप करेंगे and nutrient चाहिए इसको. Okay. So for nutrients, I'll add some Thermocort in. Not much, maybe 5, 6 or 7 of them, so that initially for 12 to 18 months, I don't need to put any nutrients. And जो plant इसके अंदर में grow होएगा, the leaves will fall down. जो plant इसका grow होगा अंदर में उसका leaves नीचे गिरेगा, that will rot, decompose and form the nutrients. And so ये खुद का एक cycle, ecosystem develop करेगा that will be running within. You can also put some insects जो इसको sustainable बनाएगा और भी. There are many insects available. आप कोई pot को उठाओ उसके मिट्टी में मिल सकता है, नीचे में मिल सकता है. There are also people who sell these insects. So that's you can use those too for the health of your terrarium. So मैंने ये वाला बुद्धा यूज़ किया है. These buddhas are easily available in the market क्योंकि जो आप एक्वेरियम में डालते हो या कहीं पर भी कुछ भी. आई एम यूजिंग बुद्धा. यू कैन यूज़ एनीथिंग दैट्स अवेलेबल जो आपके पास है. ओके सो दिस स्टैचू हैड सम स्पेसेस इन द ऑन इट्स साइड. उसका साइड में थोड़ा स्पेस था तो मैं वहाँ पर मॉस डाल रहा हूँ एंड मॉस के बीच में आई पुट ऑन सम थर्मोकोट. में कुछ 1 या 2 थर्मोकोट डाल दूँगा बिकॉज आई प्लान टू ग्रो सम मॉस देयर. मुझे वो जो एरिया है ना जो उसका बीच में जो स्पेस है उसमें मॉस डाल के मैं उसमें फर्न्स ग्रो कर रहा हूँ. सो आई एम ग्रोइंग दोस एंड इट विल गिव अ वेरी एस्थेटिक लुक. इसको ना पूरा वो जंगल रेन फॉरेस्ट टाइप का एक वाइब देगा. सो फॉर दैट रीज़न आई एम यूजिंग दिस टेक्निक एंड आई एम श्योर दिस विल लुक रियली गुड. सो आफ्टर प्लेसिंग द मॉस, आफ्टर पुटिंग सम थर्मोकोट, I'll put on some ferns. You can use anything that's available. मैंने ये फर्न जो वॉल में ग्रो कर रहा था वहाँ से निकाला है. ओके
सो जो मैं स्टैचू के अंदर में डाल रहा हूँ, दिस आर स्प्रेगनम मॉस, बट यू कैन यूज़ एनीथिंग दैट्स अवेलेबल। यू कैन ऑल्सो यूज़ सम अमाउंट ऑफ कोकोपीट, उसको धो के भी डाल सकते हो, या वाल से निकाल के मॉस, या सम कोको चंक्स, कोकोनट का जो कवर है उसको भी थोड़ा निकाल के उसको भी आप डाल सकते हो। ओके, सो एनीथिंग विल डू। फिर इसको डालने के बाद आई विल जस्ट चेक ऑन हाउ इट लुक्स। तो इसका प्लांट को डालने के बाद आफ्टर यू प्लेस योर फर्न, इट्स गुड लाइक यू कीप ऑन स्प्रेइंग सम वाटर सो दैट योर फर्न डजंट गेट स्ट्रेस एंड योर मॉस वो एक्सपांड हो जाए, देन इट विल हैव अ वेरी गुड ग्रिप। वो अच्छे से जो फर्न डाले हो उसका रूट्स को पकड़ लेगा एंड दिस विल हेल्प योर प्लांट टू ग्रो वेरी नाइसली। मैं इसमें पेपरोमिया भी यूज़ करूँगा, कॉइन प्लांट भी बोलते हैं और वाटरमेलन पेपरोमिया बोलते हैं बहुत। यू कैन यूज़ कॉइन प्लांट, यू कैन यूज़ मनी प्लांट, यू कैन यूज़ सिंगोनियम, you can use peperomia, yes, then you can use phytonias, anything. You can also use orchids. If you have good soil for cactus, you can use cactus. And if you want to make it using aquatic plants, submersible one, then also you can plan for that. We will make a video very soon on that, underwater terrarium or जो aquarium जैसा दिखता है ना, the one that looks like an aquarium. So उस टाइप में भी हम बनाने का कोशिश करेगा। Okay, so this is how it looks now. Initially how we are starting. I'm looking for space जहाँ पर I can put on some moss and grow these ferns. Okay, so दोनों साइड में मुझे मिल रहा है। एंड ऐसा ही है कि मेरा थॉट, आई एम थिंकिंग लाइक इन कमिंग डेज दिस टेरारियम में एक्सेस ग्रोथ होगा फर्न्स का, एंड जो बुद्धा का स्टैचू है इट विल बी कवर्ड विथ मॉस एंड टेरारियम। इट विल लुक रियली नाइस। आई कैन जस्ट इमेजिन, मैं जस्ट इमेजिन कर सकता हूँ कि आने वाले दिनों में ये कितना सुंदर दिखेगा। जस्ट मेक श्योर, लाइक आई ऑलवेज टेल और एडवाइस, टेरारियम जब भी बनाते हो डोंट पुट इट अंडर डायरेक्ट सनलाइट। ओके, वहाँ पर फंगस ग्रो करना शुरू करेगा एंड योर टेरारियम विल गेट डिस्ट्रॉयड और स्पॉइल इन डेज और वीक्स। ओके, सो हमेशा इनडायरेक्ट लाइट में रखिएगा इसको एंड पुट अ लीड। अगर आप लीड नहीं भी लगाने चाहते हो देन ऑल्सो इट्स फाइन, बट जब आप वाटर करोगे या स्प्रे करोगे यू मेक श्योर लाइक यू नेवर ओवर वाटर इट और नेवर अंडर वाटर। ओके, सो लीड खुला रखने से आपको वाटरिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। यू नीड टू कीप वाटरिंग देम। एंड अगर आप लीड लगा देते हो देन मे बी 25 डेज, 30 डेज या 35 डेज में आपको वाटर स्प्रे करना होगा। ओके, दैट्स हाउ इट लुक्स नाउ एंड आई विल स्प्रे ऑन सम वाटर। सो जब आप लीड लगा देते हो तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि उसमें स्प्रे करना है? सो व्हेन यू मेक ए टेरारियम आपको दिखेगा कि दिन में या रात को अगर देखोगे यू विल सी सम वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर या जार जिसमें भी आप बना रहे हो, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होएगा। ओके, सो लाइक रेन। अगर वो नहीं होता है फॉर्म देन योर टेरारियम इज़ ड्राई एंड यू नीड टू वाटर। लेकिन जब तक वो हो रहा है इट विल लुक रियली गुड। सो मीनवाइल ये करने के टाइम लाइक वाइल वी आर टॉकिंग आई जस्ट प्लेस द बुद्धा इनसाइड। एक बार देख लिया कि हाउ डज इट लुक, वो कैसा दिखेगा। सो वंस आई प्लेस्ड इट एंड आई नो वेयर आई एम गोइंग टू पुट इट, so I'll place it back again and check. Terrarium में patience is something like you really need to have. Okay, and sometimes you need to change your plan. आपको नहीं मालूम कि वो कैसा होएगा। Okay, so मेरा जो पीछे में मैंने वो piece of wood लगाया था it's not so stable. Let me see what we can do with that. मीनवाइल उसको साफ़ करते रहना होगा, उसको प्लेसमेंट अच्छा करना होगा, बिकॉज टेरारियम हिलने से अगर आपका स्टैचू गिर गया और योर प्लांट्स कम ऑफ देन यू नीड टू मेक श्योर लाइक हाउ डू यू प्लान बी, उसको कैसे बैठाएंगे या हाउ यू विल मेक इट लुक आफ्टर दैट। समटाइम इट हैपन्स आपका ये मिक्स हो जाता है थर्मोकोट एंड सॉइल, देन हाउ डू यू सेपरेट। फिर मेरे पास एक स्मॉल क्ले पॉट था, आई एम जस्ट पुटिंग इट इनसाइड so that it looks good. Then I have peperomia. I got some more ferns as we progress with making the terrarium. We will keep on placing them and let's see how it turns out to be. So that's how it looks from behind and we'll work more on this. So आप देख सकते हो।
doesn't look good. I don't know, I'm not so confident about the piece of log that I'm using in. So meanwhile, while I'm checking how it looks या कैसे होता है, I might take it out also, I might not put it. Okay, you don't need any fancy item for making terrarium. Whichever things are available आपके पास है, it's totally DIY, you can use them. मैंने इसको तोड़ लिया. तोड़ने के बाद I also have some twigs, dry twigs या branch of some dead or dried plants. मैं उसको भी यूज़ करने का ट्राई करेगा. Okay, so you see, I just try to place it. मुझे ये स्पेस चाहिए so that बैक साइड में I can put some ferns या कुछ डाल सकूँ, इसलिए मैंने वो स्पेस बनाया था so that it can have a grip. So ये मैं twigs के बारे में बोल रहा था. So these are the twigs that I have with me right now, and I'll see how I place it. So you might have your own imagination. आपका खुद का thought process आप यूज़ कर सकते हो, creativity यूज़ कर सकते हो, जो भी available है, using that you can make it. I'm trying to put it in various way so that it looks good. अगर मुझे पसंद नहीं हुआ तो मैं बाद में निकाल भी सकता हूँ. And sometimes your plant might dry or die inside. Then you might have to change them. Be very prepared while working with your terrariums. Terrariums में जब भी काम कर रहे हो, you need to have patience. और gardeners को हमेशा एक चीज़ बोलूँगा मैं कि always remember that your plants are never permanent. Okay? वो आपका परमानेंट नहीं है. दे आर ऑल्सो लिविंग क्रिएचर्स. लाइक दे लिव, दे विल ऑल्सो डाई वन डे. ओके, दैट्स अ ट्रूथ, दैट्स अ रियलिटी दैट वी ऑल गार्डनर्स नीड टू एक्सेप्ट इट. सो मुझे ये पोजीशन मिल गया. आई थिंक आई विल प्लेस इट इन दिस वे. इसको डालूंगा मैं, एक बार देख लेता हूँ हाउ डज इट लुक. इट हैज़ अ वेरी स्टेबल सिटिंग नाउ. ये हिलेगा नहीं और गिरेगा नहीं. एंड दिस लुक्स गुड विथ मी. So अभी एलिमेंट्स डालना है. सो आई हैड अ स्मॉल लावा स्टोन. आई ट्राई प्लेसिंग इट इनसाइड. ये आपका स्टैचू को भी एक ग्रिप देगा सो दैट इट डजंट फॉल ऑफ, एंड ऑल्सो इट विल कीप सम स्पेस इन बिटवीन जहाँ पे मैं दूसरे प्लांट्स को प्लेस कर सकूँगा. ओके, देन वी हैव दिस आर्डन पॉट भी है जिसको मुझे डालना है. सो दिस इज़ द कॉइन वाटरमेलन पेपरोमिया. ओके, ये लीफ से प्रोपेगेटेड था, तो मैं इसको अंदर में डालने का ट्राई करेगा. लेट्स सी विच पोजीशन इट ग्रोज बेटर. कोने में मुझे डालना था, बट आई थिंक इट वोंट लुक गुड देयर, सो मैं इसको आगे लाने का ट्राई करेगा. मीनवेल जस्ट स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच. आप लोग हो साथ में. अगर कुछ भी क्वेरीज है इन रिगार्ड्स टू गार्डनिंग, देन यू आर ऑलवेज वेलकम थ्रू योर सजेशंस, क्वेश्चंस, लाइक्स एंड शेयर्स. Any way you want to support us, we are always available. अगर आपको कुछ जानना है in regards to plants, then you can put your comments. You can go to our community post and give us your suggestion. So इसको place करने के लिए I'll use some moss डाल के, sphagnum moss डालूँगा मैं अंदर में. I also have some Fittonia जिसको मैं अंदर में बाद में डालूँगा. सो मैंने मॉस डाला, पेपरोमिया को ग्रो किया. नाउ इट्स टाइम फॉर सम वाटर, क्योंकि जब से मैंने स्टार्ट किया मैंने वाटर नहीं डाला था. आई एम स्प्रेइंग सम वाटर नाउ बिकॉज आई हैव पुट सम ड्राई मॉस. मैंने ड्राई मॉस अंदर में डाला था. जैसे मैं पानी स्प्रे करूँगा, इट विल ट्राई टू एक्सपैंड एंड वो ग्रीप लेगा. ओके, वो रूट्स को अच्छे से ग्रीप ले लेगा एंड चीज़ों को, द सॉइल दैट्स इनसाइड नो, इट विल गेट प्लेस वेरी नाइसली. एंड मैं इसको साफ़ करता रहूँगा सो दैट आई कैन गिव यू ए क्लियर पिक्चर. मैं टिश्यू पेपर से उसको साफ़ कर रहा हूँ. ओके, देन आई हैव सम फिटोनियस. सो आई पिंच इट आउट एंड ग्रो द स्मॉलर ब्रांचेस. जो बड़े लीव्स हैं, आई डोंट नीड दैम. फिटोनियस आर वेरी गुड टेरारियम प्लांट्स एंड दे लव ह्यूमिडिटी. लो लाइट में ग्रो करेगा and they become really bushy. You can try them. They come in different colors. Okay, so you can play with colors when you are using Fittonias. आप देख सकते हो मैंने उसको डालने का कोशिश किया है.
सेम वे में मॉस डाल के उसको स्टेबल करेगा. ओके, आफ्टर मेकिंग इट स्टेबल I'll check how it looks from behind too. उसको अच्छे से ग्रिप मिला है या नहीं मिला है, because if they don't then there is chances that these plants might die. Okay, so मैंने moss डाल दिया इसके अंदर में, and once we keep watering the mosses will grow or they will expand and वो roots को अच्छे से grip देगा. So this will help your plant really thrive and grow within the terrarium. So that's how it looks from behind. फिर मेरे पास और भी मॉस था, so I'll place it back side. मेरा है कि since light will come from the front side, जितना भी ferns या मॉस ग्रो करेगा, it will try, वो कोशिश करेगा कि आगे के तरफ वो आए. It will try to grow towards the light. So बुद्धा का पीछे से वो front side में आएगा. So that's the whole idea, like how it will look. So जब भी ये टेरारियम्स पूरा रेडी हो जाएगा, बुद्धा के पीछे में पूरा प्लांट्स होगा, ग्रोथ होगा, एंड ऑल ऑफ देम विल ट्राई टू कम इन फ्रंट फ्रॉम बिहाइंड. सो मैं आगे की तरफ भी कुछ फर्न डालूँगा एंड आई विल ट्राई टू कवर इट अप वेरी वेल. फिर मैं इसमें लास्ट में नीचे में थोड़ा फर्न मॉस, then also some cushion या carpet moss I'll use them so that the front part stays covered and stays green, so that it have a contrasting color and it looks really good. So these are my fern moss. मैं पीछे में डालूँगा so that when they grow उससे fern जैसा growth निकलेगा वहाँ से from this moss. So that's how it's looking after placing most of the things inside. And this is the cushion moss या carpet moss मैं अंदर में डालूँगा. This one I have collected from the walls. जो damp area होता है wall में, वहाँ से मैंने collect करके लाया था, and I'm growing them now. So I'll put some pieces of this moss inside the terrarium. फिर ये आर्डन पॉट भी मुझे डालना है, जो छोटा वाला पॉट है अंदर में. मैं उसमें तो मेरा टेंशन या इंटेंशन है कि मैं उसमें पानी डाल के उसको अंदर में डालूँगा. ओके, इट विल हेल्प रिटेन द मॉइस्चर टू नीचे की तरफ. So that's how we are placing a lot of moss that's available. These are all living moss. In coming days they will have very good growth inside, and अंदर का जो एटमॉस्फेयर है या इकोसिस्टम है, ये सब में अच्छे से ग्रोथ करने के लिए हेल्प करेगा. सो दे आई हैड अनदर पीस ऑफ स्मॉल फिटोनिया, मैं उसको मॉस में प्लेस कर दूंगा, एंड इन कमिंग डेज इट विल रूट देयर एंड इट विल बिकम रियली बुशी एंड गुड. सो यू कैन सी most of the plants that I used in this terrarium have different shades of green. Okay, and the statue is gray and it's transparent. So इसमें एक colorful है कि brown color है, that comes from the pot. So you can see the color contrasting. So आप लोग भी अपना creativity, you use the best color for your terrarium. Okay, you can use any transparent thing through which light can pass through, and then use it for your terrarium. Just make sure water कैसे करोगे आप, soil कैसे रखोगे, what plants you are using, and light. If you can control and have good knowledge on these things, your terrarium will do really good. So मेरे पास ये वाला fern था, I'll place it on behind the Buddha so that ये fern जैसे grow करेगा ये बड़ा होएगा and they will become long, वो लंबा होएगा, and these two will try to पूरा स्पेस को कवर अप करने का ट्राई करेगा. सो आई एम चेकिंग कहाँ पे अच्छा पोजीशन होगा. सो आई थिंक लाइक दिस इज़ द बेस्ट पोजीशन. सो यहाँ पे हम डालेगा इसको.
So after placing all the plants, moss, all the elements, almost all the elements, now I'll place the clay pot inside, and then I'll give it a good spray of water. Okay, because it's the first time I'm not spraying so much. And इसको साफ करके ऊपर से हम लीड लगा देंगे. So I'll give a good splash of spray of water inside, so that everything settles down well. The plant don't get stressed. Then I have this clay, small clay pot that needs to be placed inside. So मैं इसको भी place करेगा अंदर में. But I wanted to fill it up with water, but now since I'm not having that ready with me for now, so I'll just place it within. Okay, उसको साथ में डालेंगे. And always remember, when you are placing something in a terrarium or in garden, if you want it to look more appealing, always put it in odd numbers. आप 1, 3, 5 ऐसे डालो. Never put it in even numbers. 2, 4 में डालोगे ना, उसका attraction कम हो जाता है. So if you put them in odd numbers, it makes people, it appeals people. It's more attractive and वो ज़्यादा अच्छा लगता है. So that's a small tip from Greendale. So my terrarium is almost ready. So that's how it looks, and I hope you really enjoyed it. अगर कुछ क्वेश्चन है, if you have some suggestions for me, then please do let me know. Please write them down in the comment section. I tried to explain the whole video in Hindi and English. My Hindi is not so good, nor am I good in English, but I hope you'll understand and you'll support me throughout. Please do share our videos, shorts and channel, and do like and do comment. Do remember Greendale, and we will work hard and try to make some more videos. We'll try bringing some new innovative ideas for gardening, and we'll share happiness. So thank you everyone. Please do subscribe and enjoy Greendale. So that's the lead, and I'll just cover it for now. Thank you everyone.